ಭಾಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नमस्कार। आज हिंदी क्लास को आने वाला बच्चों को और अधिकारियों को स्वागत करती हूँ। बच्चों तुम्हें आराम है? ओ ठीक हो, तुम्हें आराम है। बच्चों तुम्हारे हाथ में हिंदी वल्लरी का किताब और एक पेंसिल तुम्हारे हाथ में रखिए तुम्हें बच्चों। हाँ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈಗ ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡೋಣವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾ ಸರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀವು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ। 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಮಯವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು। ಬಚ್ಚೆ ತುಮೆ ಇಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕರೆ ಹೇ ನೀ? ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು 1ನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ। ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ? ವರ್ತಮಾನ। ಹಾಗಾದ್ರೆ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ। 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ। ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಕ್ರಿಯೆಕಾಲಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 3 ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿ में और अंग्रेजी में भी 3 प्रकार का क्रियाकाल होती है। बच्चों देखो, काल मतलब क्या है? काल ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय और किसी के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसके काल कहते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಇಂಥ ಕಾಲವನ್ನ ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ। काल के भेद 3 होती है। काल के भेद कितना होती है? 3। बच्चे, पहला भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल का कन्नड़ में भूतकाल बोलती, अंग्रेजी में पास्ट टेंस बोलती। वर्तमान काल को कन्नड़ में वर्तमान काल बोलती, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस बोलती। भविष्यत काल को भविष्यत काल कन्नड़ में बोलती, अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस बोलती। ऐसे तुम्हें किताब में 14, 15, 16, 17 पाठ इन बच्चों इसी क्रियाकाल के बारे में है। ये क्रियाकाल के बारे में है। क्रियाकाल का तुम्हारे समझाते लिए कि एक चार्ट बने हैं। मैं तुम्हें देखो, ಕ್ರಿಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ್ರಿ। अब तुम्हें क्रियाकाल के सामान्य और तात्कालिक, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के आने वाला पाठ है। आ पाठ में तुम्हें लिखना, पढ़ना, समझाना। बच्चों देखो, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप में सामान्य वर्तमान काल में था आती, एकवचन के पुल्लिंग में था आती, बहुवचन में थे, बहुवचन में थे आती। ये स्त्रीलिंग रूप में थी एकवचन में आती, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ में ಬಹುವಚನ ತಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಏಕವಚನ ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹುವಚನ ತೇ ಬರುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನೋಡಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಹ, ರೆಹೆ, ರೆಹಿ, ರೆಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ।
ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಹ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಏಕವಚನ. रहा ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಏಕವಚನ. पुल्लिंग के बहुवचन है रहे, पुल्लिंग के बहुवचन है रहे. ऐसे स्त्रीलिंग रूप में एकवचन रही, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में बहुवचन का रूप एकवचन का रूप एकलित है रही रही. समझते हुए बच्चे देखो, ऐसे भूतकाल सामान्य भूतकाल में आया आए आई आई. भूतकाल का आया एकवचन का पुल्लिंग रूप में है, बहुवचन का पुल्लिंग रूप में आया आती, स्त्रीलिंग रूप में एकवचन की आई आती, स्त्रीलिंग रूप में बहुवचन की आई आती. आई आई एक है, एक बिंदु रखना, बहुवचन में स्त्रीलिंग रूप में एक बिंदु डालना. ऐसे पूर्ण भूतकाल में था, ते, ती, ती. क्या बच्चे? था, ते, ती, ती. देखो बच्चे, ये पुल्लिंग रूप में एक वचन में था, बहुवचन में ते. ऐसे स्त्रीलिंग रूप में एक वचन में ती, बहुवचन में ती आती. हाँ बच्चों, दूसरा तीसरा है भविष्य काल. भविष्य काल में पुल्लिंग रूप में एक वचन जाएगा जाएंगे. ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯೇಗ ಜಾಯೇಂಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬಿಂದುವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯೇಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯೇಂಗಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಯೇಗ ಜಾಯೇಂಗೆ ಜಾಯೇಗಿ ಜಾಯೇಂಗಿ ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸರಿ. ಈಗ ನೋಡಿರುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯಾ ಆಯೆ ಆಯಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಪಾಠ 14 ಇದೆ. ಆ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. अब तुम्हें बच्चों इस पाठ को खोलो. सभी बच्चे इस पाठ को खोलिए. बच्चों 77 पेज खोलिए बच्चे. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳ 77ನೇ ಪುಟವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪಾಠ 14 ಪಾಠ का नाम ತಾ, ತೇ, ತಿ, ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. सबको बच्चों मेरा साथ पढ़ाइए. बच्चों पढ़िए पाठ 14 था, ते, ती, ती. अमित एक सिपाही था, अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था, वह देश की रक्षा करता था. राकेश और राहिल मित्र थे, राकेश और राहिल मित्र थे. वे रोज शाम को खेलते थे, वे रोज शाम को खेलते थे. आरती अच्छी खिलाड़ी थी, आरती अच्छी खिलाड़ी थी. वह दादी की लाडली थी, वह दादी की लाडली थी. रूपा और सलमा सहेलियां थी, रूपा और सलमा सहेलियां थी. वे झूला झूलती थी. बच्चों पढ़िए, अच्छे बच्चे तुम्हें. देखिए बच्चे, इसके बारे में समझाना. था, ते, ತಿ, ತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಕ್ಷರ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? पूर्ण भूतकालದಲ್ಲಿ. ठीक हो. ता पुल्लिंग में एक वचन में आती, ते पुल्लिंग में बहुवचन में आती, ती स्त्रीलिंग रूप में एक वचन में आती, ती स्त्रीलिंग रूप में बहुवचन में आती. बच्चों देखो, ती ती ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ತಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಬಹುವಚನ ಆಗುತ್ತೆ. सुनो, अमित पुल्लिंग रूप में है, एक सिपाही था. ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದೋಗಿರೋದು ಇದು ಸಿಪಾಯಿ ತಾ. ಅವನು ಅಮಿತ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದ. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. वहाँ देश की रक्षा करता था. वहाँ संज्ञा, अमित संज्ञा शब्द है, उसके जाग में क्या रखिए? सर्वनाम शब्द वहाँ ಏಕವಚನ में है. देखो बच्चे, वहाँ देश की रक्षा करता था. ಅವನು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ.
राकेश और सलमा मित्र थे। दोनों व्यक्ति है बहुवचन रूप में, दो और एक अलग शब्द अनेक शब्द मिलने के बहुवचन रूप मिलते हैं। बच्चे देखो राकेಶ್ ಮತ್ತು ರಾಗಿಲ್ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು, बहुवचन में सहायक क्रियापद भूतकालದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। वे रोज शाम को खेलते थे, वे रोज शाम को खेलते थे। वे बहुवचन रूप में आइए, उसके लिए सहायक क्रियापद भूतकाल में थे आती। आरती अच्छी खिलाड़ी थी, आरती स्त्रीलिंग रूप में एक वचन में आने वाला शब्द है, उसके लिए भूतकाल के अंत में सहायक क्रियापद थी आती। आरती अच्छी खिलाड़ी थी, आरती ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು। वह दादी की लड़ली थी, वह आरती जाग पर क्या डालिए, वह सर्वनाम एकवचन रूप डालिए। देखो बच्चों, वह दादी की लड़ली थी, लाडली ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದಾಗಿ, वह दादिया ಅವಳು ಅಜ್ಜಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು। रूपा और सलमा सहेली थी, रूपा सलमा दोनों संज्ञा है, उसके लिए बहुवचन में आती सहेलियां, बहुवचन में आया वाला शब्द है। थी स्त्रीलिंग रूप में, भूतकाल में थी बहुवचन रूप में। देखो बच्चों, रूपा सलमा सहेलियां थी, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು। वे झूला झूलती थी, वे झूला झूलती, ಅವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು। अच्छे बच्चों, तुम्हें इसके बारे में समझेतीವಿ। देखो बच्चों, ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ। ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತದನಂತರ ತೋರಿಸಿ। देखो बच्चों, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾನೀಗ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। इस पाठ में आने वाला शब्द था, थे, थी, थी, सिपाही, मित्र, शाम। मेरे साथ बोलिए बच्चों, अच्छी, खिलाड़ी, लड़की, सहेलियां, झूला। ಈ ಪೂರ್ಣಭೂತ ಕಾಲ में आने वाला पाठ के शब्द है था, ಇದ್ದನು, ಹಿಂದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದೋದು, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು, ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆತಾ। ಥೇ ಇದ್ದರು, ತಿ ಇದ್ದಳು, ಥಿ ಇದ್ದರು, ಸಿಪಾಯಿ ಸೈನಿಕ್, ಮಿತ್ರ ಗೆಳೆಯ, ಶಾಮ್ ಸಂಜೆ, ಅಚ್ಚಿ ಒಳ್ಳೆಯ, ಕಿಲಡಿ ಹುಡುಗಿ, ಲಡಲಿ ಮುದ್ದಿನ, सहेलियां ಗೆಳತಿಯರು, झूला जोकाली। ठीक है बच्चों, तुम्हें लिखना किताब में। हाँ बच्चों, इस पाठ के लिए मैं एक अभ्यास का चटुवटिके देते हूँ, तुम्हें मेरे साथ चटुवटिके में भाग लेती हो बच्चे। ओ गुड, अच्छे बच्चे। बच्चों देखो, एक चटुवटिका है, चटुवटिका में पूर्ण भूतकाल के आने वाला सहायक क्रिया शब्द के अंत में तुम्हें खाली जगह में भरिए। पहला है क, अमित देश की रक्षा करता, डैश था या थी। ख, राकेश और राहिल मित्र, डैश था या थे। ग, आरती अच्छी खिलाड़ी, डैश थी या थी। क, वे झूला झूलती, डैश थी या थी। देखो बच्चों, तुमके कालावकाश देती हूँ, मुझे भी सही उत्तर लिखना। लिखो बच्चों। हाँ बच्चे, तुम्हें लिखिए, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। ಹಾಗಾದ್ರೆ अमित, अमित किस लिंग में है, पुल्लिंग लिंग में है, उसके लिए अंत में क्या सहायक क्रियापद डालना, अमित देश की रक्षा करता, डैश था, क्या था। ख, राकेश और राहिल मित्र, डैश था और थे। राकेश और राहिल दोनों मित्र है, दोनों संज्ञा है, दोनों व्यक्ति है, इसके बहुवचन रूप में है, इसके क्या डालना, थे। ओ गुड, थे। अच्छे बच्चों। अगर आरती अच्छी खिलाड़ी, खिलाड़ी डैश थी और थी, आरती एक वचन में स्त्रीलिंग रूप में आने वाला शब्द है। देखो बच्चों, क्या डालना, थी आरती, थी, की एक वचन में है स्त्रीलिंग रूप में। वे झूला झूलती, डैश थी आरती, थी।
गुड, बहुवचन में आती। तुमको इस चटुवटिके में भाग लिए के वास्ते मुझे के साथ तुमको ताली बजाना, ताली बजाना। हाँ बच्चों, हाँ ठीक बच्चों। ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಪಾಠ 15 ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। तुम्हें देखो इस पाठ सामान्य वर्तमान के आने वाला सहायक क्रिया शब्दों के है था, थे, ती। मुझे मेरे साथ पढ़ाइए बच्चों। पाठ 15 था, थे, ती। रमेश गाता है, वह अच्छा गाता है। पंछी आसमान में उड़ते हैं, वे पेड़ों पर उड़ते हैं। तितली सुंदर होती है, वह फूल से मधु चूसती है। पढ़िए मेरे साथ। अच्छे बच्चे तुम्हें देखो बच्चे, था सामान्य वर्तकाल में एक वचन में आने वाला शब्द है। वर्तमान काल ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಡೆಯುವಂತ, तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई थी, ये वर्तमान काल में आती। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ती हूँ। ऐसे राकेश गाता है, रमेश गाता है, वह अच्छा गाता है। रमेश हाडನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, पुल्लिंग में एक वचन में इसके गा को दांतों के साथ मिलकर गाता है। देखो बच्चों, रमेश आड़तिದ್ದಾನೆ, अब काम करते हैं उसके लिए। वह अच्छा गाता है, रमेश के जात पर सर्वनाम डालिए, वह एक वचन में। देखो बच्चों, अच्छा गाता है, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। पंछी आसमान में उड़ते हैं, पंछी ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, आसमान में उड़ते उड़ते बहुवचन में है। उसके लिए पक्षिಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದವು। वे पेड़ों पर बैठते हैं, वे बहुरूप में सर्वनाम है। पेड़ों पर बैठते, बैठते ते आती, पेड़ बैठ प्लस ते बैठते है। ऐसे स्त्रीलिंग रूप में तितली सुंदर होती है, होती। तितली एक चिट्ठी है को, तितली सुंदर होती है, वह फूल मधु चूसती है। एक वचन का स्त्रीलिंग रूप में वाह आई, उसके लिए वह फूल से मधु चूसती, ಅದು ಹೂವನ್ನು ಮಧುರವನ್ನ ಇರ್ತಾ ಇದೆ। बच्चों, इसके लिए आने वाला, इस पाठ से आने वाला शब्दार्थ के समझाते हुए बच्चों। देखो बच्चों, शब्दार्थ ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಥೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ತಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಇರುತ್ತೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ತಿ ಎನ್ನುವುದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಏಕವಚನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದ ಏಕವಚನನೂ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಬಹುವಚನನೂ ಹೌದು। ಗ ಆಡು, ಅಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆಯ, ಪಂಚಿ ಪಕ್ಷಿ, ಆಸ್ಮಾನ್ ಆಕಾಶ, ಪೇಡ್ ಮರ, ತಿತಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ, फूल हूವು। एकवचन बहुवचन में था, एकवचन में आती, बहुवचन रूप में तेती। किसी का लिंग है पुल्लिंग रूप में है, किसी रूप में लिंग रूप में है, पुल्लिंग रूप में है। ती आरती एकली ಚಾತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ। ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು पुल्लिंग बहुवचನ ತೀನೇ ಬರುತ್ತೆ। बच्चों ठीक है, इस पाठ के बारे में ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾ ತೇ ತೀತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ। ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। देखो ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು। वाक्य पूरा करो। ए बंदर खेल का डैश आई ती आर था, बंदर खेल का डैश आई ती आर ती। दो सुमा दूध पी डैश आई ता आर थी। तीन अध्यापक पाठ पढ़ा डैश आई ती आर थे। चार लड़कियां मैदान में खेल डैश आई ती आर थी। इस चटुवटिके प्रश्न तुमके समझाते हुए तुम्हें चटुवटिके करो, उत्तर सही उत्तर लिखिए। हाँ बच्चे लिखिए, तुम्हें अच्छे बच्चे तुम्हें लिखती।
हाँ बच्चों, एक प्रश्न का उत्तर बोलिए। बंदर केला का ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ ಅರ್ತಿ ಬಂದರ್ ಮಂಗ. ಅದು ಏಕವಚನದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತ ಆಗ್ಬೇಕು. ತಾ ಡಾಲ್ನ, ಕ್ಯಾ ಡಾಲ್ನ, ತಾ. सुमा दूध पी डैश आई. सुमा स्त्रीलिंग रूप में एक वचन में आती है, इसके लिए तुम्हें ती डालना. लिखिए तुम्हें अच्छी पीती. ती अध्यापक पाठ पढ़ा डैश आई. ती आरती अध्यापक बहुवचन रूप में पुल्लिंग है, उसके लिए पढ़ते. क्या लिखना? पढ़ती. ख लड़कियां मैदान में खेला डैश आई थी. लड़कियां मैदान में खेलती. की ती एक है, उसके लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में एक वचन और बहुवचन में दोनों की ती आती, उसके लिए खेलती डालना. अच्छे बच्चे, तुम्हें लिखी है. ठीक है, तुम्हारे इस अभ्यास नोटबुक में लिखो को तुम्हारा आपका अध्यापक को दिखाइए. हाँ बच्चों, अब मैं भूतकाल और सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और वर्तमान काल वे बारे में लिखिए. दूसरे वर्तमान काल है तात्कालिक वर्तमान काल का बारे में आगे पढ़ के जाना. चला है बच्चे. चलिए पाठ 16 रहा रही रहे. बच्चों पाठ 16 तात्कालिक वर्तमान काल में आने वाला सहायक क्रिया शब्द. किसके क्रियाकाल में आने वाला शब्द बच्चों? तात्कालिक वर्तमान काल में आने वाला सहायक क्रियापद. ठीक हो बच्चों. रहा रही रही, मेरे साथ पढ़ाइए बच्चों. बच्चा खा रहा है. बच्चा खा रहा है. वह रोटी खा रहा है. वह रोटी खा रहा है. कोयल गा रही है. कोयल गा रही है. वह मीठे गीत गा रही है. वह मीठे गीत गा रही है. नानाजी आ रहे हैं. नानाजी आ रहे हैं. वे आसन से आ रहे हैं. वे आसन से आ रहे हैं. बच्चों देखिए, रहा रही रहे 3 शब्द है. तात्कालिक वर्तमान काल में आने वाला शब्द रहा पुल्लिंग रूप में एक वचन में आने वाला सहायक क्रिया शब्द. देखो बच्चे, रही स्त्रीलिंग रूप में एक वचन और बहुवचन में आने वाला शब्द. रहे पुल्लिंग रूप में बहुवचन में आने वाला सहायक क्रिया शब्द. बच्चे इस वाक्य में रचना किए. बच्चा खा रहा है. ಅಲ್ಲಿ ಖಾತಾ ಇತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಖಾತಾದಲ್ಲಿ ತಾವನ್ನು ತೆಗೆದು ಖಾ ಧಾತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ರಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಚ್ಚೋ ಬಚ್ಚಾ ಖಾ ರಹಾ ಹೈ. ಮಗು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಹಾ ರೋಟಿ ಖಾ ರಹಾ ಹೈ. बच्चा जाग में सर्वनाम शब्द डालिए. वहाँ एक वचन में है रोटी खा रहा है. ಅವನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. कोयल गा रही है. कोयल ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. स्त्रीलिंग रूप में है. वहाँ मीठे गीत गा रही है. ಅದು ಮಧುರವಾದ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. नानाजी आ रहे हैं. नानाजी बड़ा व्यक्ति है, उसके लिए बहुवचन में संबोधन करना है. उसके वास्ते नानाजी बहुवचन रूप में पुल्लिंग में आती. उसके रहे सहायक क्रिया शब्द वर्तमान में आती. नानाजी आ रहे हैं. नानाजी ತಾತ ಊರಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. वे आसन से आ रहा है. ಅವರು ಆಸನದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. बच्चों समझाते हैं. रहा रही रहे. क्या
ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ವತಃ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾದ ಪದದ ಶಬ್ದದ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. इस पाठ के चटुवटिके जाने समय पर, चलना समय पर पहले इस पाठ का शब्दार्थ समझाना। मालूम है बच्चों? इस पाठ का शब्दार्थ रहा इद्दाने, रही इद्दाळे, रहे इद्दारे, बच्चा मगु, रोटी रोटी, कोयल कोयले, मीठे मधुरा, नाना अज्जा। बच्चे लिखना तुम्हारे किताब में। हाँ बच्चों, रहा एक वचन में है नहीं, अब उसके बहुवचन क्या है? रहे। किसके लिंग में है? पुल्लिंग में है। रही एक वचन का स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग बहुवचन का स्त्रीलिंग रूप एक लीजिए। इसी रहा, रहे, रही किस क्रिया वर्तमान काल का, तात्कालिक वर्तमान काल के आने वाला सहायक ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದ. ಮಕ್ಕಳೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವು ಸಹಾಯಕವಾದಂತ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ करती तुम्हें, हाँ करते, अच्छे बच्चे तुम्हें। हाँ बच्चों, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ? ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಕ ಅನೂಪ್ ಕಪಡೆ ಬೇಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐ, ಕ नीता गाड़ी चला डैश है, ग बच्चे आंगन में खेल डैश हैं। बच्चे देखो, बहुवचन में है डालना, एक वचन में है। इसके वास्ते तुम्हें सूचन को तुम याद रखो, इसमें उत्तर डालो। हाँ बच्चे देखो, उत्तर लिखिए तुम्हें, हाँ लिखिए तुम्हें बच्चे, अच्छे बच्चे है तुम्हें। क अनूप कपड़े बेच डैश है, अनूप एक वचन में पुल्लिंग रूप में है, उसके क्या डालना? रहे, रही, रहा। हाँ रहा, ठीक हो, गुड, रहा। क नीता, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಕ नीता गाड़ी चला डैश है, नीता किसके लिंग में है? किस लिंग में है? स्त्रीलिंग, अच्छे स्त्रीलिंग रूप में है, उसके लिए तुम्हें रहा डालना। बच्चे बहुवचन में पुल्लिंग रूप में आंगन में खेल डैश है, रहे है। लिखिए मुझे बच्चों, शाबाश है, उसके लिए मेरे साथ को शाबाश के लिए ताली बजाओ। बच्चों, भविष्य काल में आने वाला सहायक क्रिया शब्द है जाएगा, जाएंगे, जाएगी, जाएंगी। ये पुल्लिंग रूप में एक वचन जाएगा, बहुवचन जाएंगे, स्त्रीलिंग रूप में एक वचन जाएगी, बहुवचन में जाएंगे। हाँ बच्चों, ये मोहन दुकान जाएगा, मोहननु अंगडिगे ಹೋಗಿದ್ದನು. ವಹ ರಾಶನ್ ಲಾಯೇಗ, ಅವನು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ये मोहन पुल्लिंग रूप में एक वचन में है, उसके लिए सहायक शब्द जाएगा। वह सर्वनाम शब्द एक वचन है, उसके लिए लाएगा। ठीक है बच्चों? ऐसे चाचा जी शहर जाएंगे। चाचा जी ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ बड़ा व्यक्ति है, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. इसके लिए चाचाजी शहर जाएंगे, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. वे खिलौने लाएंगे, वे चाचाजी जाग पर क्या डालिए? सगने के स्थान पर वे सर्वनाम का बहुवचन है, खिलौने लाएंगे. ಅವರು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. महिलाएं मेल देखने जाएगी, वहाँ साड़ियाँ लाएगी. महिलाएं बहुवचन रूप में है, स्त्रीलिंग रूप का वह जाएगी डालिए. वहाँ साड़ियाँ लाएगी, ಅವರು ಸೀರೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆ. सरल स्कूल जाएगी, सरल ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. सरल एक वचन में है, उसके लिए जाएगी आइए. वहाँ पुरस्कार जीत कर आएगी, ಅವಳು
ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತರುತ್ತಾಳೆ। इसके लिए बच्चा समझाते हैं इस पाठ के आने वाला शब्दार्थ तुमको समझाते हुए। इस पाठ का शब्दार्थ जाएगा ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, जाएंगे ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, जाएगी ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, जाएंगे ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೋಗುವರು, ದುಕಾನ್ ಅಂಗಡಿ, ಶಹರ್ ನಗರ, ಚಾಚಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಕಿಲೌನೆ ಆಟದ ಸಾಮಾನು, ಮೇಳ ಜಾತ್ರೆ, साड़ी सीरे, पुरस्कार बहुमान, जीत गेलु। लिखिए बच्चों आटी को। बच्चों इस पाठ के एक चटुवटिके देते, चटुवटिके में तुम्हें भाग लिखो को चटुवटिके करो। हाँ बच्चों ये अभ्यास का चटुवटिके है, वाक्य पूरा करो। ये वाक्यवन्न पूर्ति माडिरी। क वा दुकान डैश, ख वे खिलौने, ग सरला स्कूल, ग महिलाएं मेला देखने। बच्चों तुम्हें चटुवटिके करो, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। ये आना जाना उठना बैठना यहाँ क्रिया शब्द है। इस क्रिया शब्द स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप में भविष्य काल में बनाइए। आएगी ये स्त्रीलिंग रूप में है, आएगा पुल्लिंग रूप में। इस शब्द को ऐसे करो। हाँ बच्चों चटुवटिके करे, तुम्हें सही उत्तर लिखे नहीं। मेरे साथ सही उत्तर बोलो। क वहाँ दुकान, जाएगा जाएंगे, जाएंगे लिखना। कि वहाँ पुल्लिंग रूप में है, उसके लिए जाएगा लिखना। क वे खिलौना, लाएगा लाएंगे, वे पुल्लिंग रूप में बहुवचन में आइए, उसके लिए लाएंगे, लाएंगे को एक बहुवचन में एक बिंदु डालना। सरला स्कूल जाएगी, जाएगी सरला एक वचन शब्द है, उसके लिए जाएंगे नहीं लिखना, जाएगी लिखना। महिलाएं मेला देखना, जाएंगी जाएगी। ये महिलाएं बहुवचन शब्द है, उसके लिए जाएंगी लिखना। बच्चों इस तुम्हारे होमवर्क करने के लिए के मैं बोलतू इस तक तुम्हें मेरा पाठ सुनिए। बच्चों तुम्हें अच्छे है, सब बच्चों मेरा पाठ सुनको सिखाते हैं। उसके लिए इस पाठ तक आने वाला प्रश्नों को कुछ गृहपाठ कार्य में दे तो ये गृहकार कर को तुम्हारा अध्यापक को दिखाइए। ये गृहकार का पेज नंबर खोलो बच्चों, 77, 78, 79, 81 पेज में रहने वाला अभ्यास का प्रश्नोत्तर तुम्हारा अध्यापकों को लिख को दिखाओ। हाँ बच्चों धन्यवाद। मेरा नाम श्रीमती सुधा दंडीन, मेरा स्कूल का नाम मादरी प्राथमिक शाला मासूर, तालूक हिरेकेरूर, जिला हावेरी। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।